So welcome everybody. Today we are celebrating Mother's Day, and all of you are mothers here, but all of you are looking so lovely, so bright. My God, look at Veena. Veena is dressed so nicely. The Veena also and Deepa also, and who else is there now? Suchi is there, Meena ji, red color में पहन के आए हैं, Shashi ji, Sundri ji, Ragini ji, and Pratibha is wearing her green color. Veena is looking so red riding hood, and Shobha ji. So thank you very much for joining me. And we are going to talk about the program now. And let me invite my first speaker now, Deepa. Deepa, will you like to speak few words? You're wearing a very lovely dress. Let us invite you. Please give her a big round of applause. Please welcome Deepa. Yes, we want to hear something from you. Yeah. मैं तो बहुत बार बोल चुकी हूँ. I wish और कोई बोले तो अच्छा है ना. Okay, no problem. I'll just stop the Anyway, recording. I have बोलने को तो बहुत कुछ है. मैं माँ की तरफ से बोलूंगी. मैं भी माँ हूँ अभी. तो when my daughter got married and मेरा बेटा उससे छोटा है, तो I thought जब मेरी बहू आएगी ना, उससे मैं अपना रियल बेटी जैसा ही रखूंगी रिश्ता. बहुत मैंने सोचा बस ये सबका होता है, बट आई सेड सच्ची दिल जान से बेटी का रिश्ता मैं रखूंगी. एंड टच वुड अब तक हो सका है. और इसलिए मैंने जब उसकी शादी हुई तो मैंने सोचा बेटी आ रही है ना, तो लेना क्या है. मैंने रियली कुछ नहीं लिया उनसे. आज तक मैंने 1 ग्राम ऑफ गोल्ड उनका नहीं पहना है, क्योंकि आई टोल्ड देम मुझे सिर्फ बेटी दे दो ना. तो सिर्फ बेटी आ गई. एंड टच वुड आज तक बेटी का रिश्ता है मेरी बहू के साथ. रियली बहू बेटी उसने भी निभाया है. साथ साथ रहते हैं. एंड मेरी पोती है, उस दिन मैंने उसको बोला कि मैं भी तो आई एम योर मदर. बट उसने कहा बट आप तो मेरी दादी है ना. मेरी पोती ने. मैंने कहा आपको जब बड़ी होंगे ना तब भी वैल्यू पता चलेगा कि व्हाट आई हैव डन फॉर यू. क्योंकि मेरी बहू ने ना शादी के बाद भी she has studied a lot. तो after she got the baby, you know, तो होता है ना naturally she used to be away for studies. I brought up my granddaughter like my daughter. तो मेरा तो पोती के साथ भी माँ जैसा ही रिश्ता है. Very nice. Thank you very much, Deepa, for your motherly relation with your daughter-in-law. That is very nice. Next, अभी बीना जी आप बोलोगे? बीना जी, you're unmute. Unmute, Beena. Beena, you have to unmute yourself. आपकी आवाज नहीं आ रही. आप कुछ कह रहे हो? Yeah, what I was saying. Now that very little time is left, let's start. No, we have 1 hour. We have 40 minutes. We have plenty of time. We have plenty of time. Don't worry. You start speaking. Yeah. 40 minutes we have. You can speak now. Beena ji, would you like to speak? So what I have to say, my mother was also a very, very nice mother. She had 7 children, so you can imagine. And always my dad used to be abroad and she used to be in India. She used to really miss him a lot. Even to write letters, they could not write. It would take 3 months for the reply to come. So whenever I would see her, every day she will write a letter. And then she would sit at the window to hear the postman come. Then the postman has to bring cycle ka koi bhi cycle ऐसा घंटी लगाता था, तो वो समझती थी postman आ गया है. तो बहुत दरवाजे पर जाके खड़ी हो जाती थी और सच में उसका लेटर आ ही जाता था मेरे डैड का. So she was a very loving person. She was a very, very up to date. She would always dress very nicely. Even in the any time you cannot see her without unpressed clothes or night dress or whatever. Even in the middle, once we went out for some party, and then she had to come and change in the night to her night dress. So her pajama or something was not ironed by the maid. Then she's telling me, Mama, Veena, you iron for me. So I said, no, even I'm sleepy. But then I was very, very
dedicated to her. I was always her right hand. And in the middle of the night, it was 2 o'clock. I had to on all the lights to go and get to the ironing room and iron for her. But inside, I would get very, very angry about her. That why is she letting her? She can wear, isn't she going to sleep now? Why does she want to have her ironed clothes at that time? Because she was always very particular about herself. She wasn't really very educated. I think maybe 5th or 6th she finished. But she was a very bright person. She told me once, it seems her teacher gave her a stamp to keep. And after many months, then the teacher asked her, didn't I give you one stamp to keep? So where is that? So it seems there was one big book in the class only, and that she had put it and let the color of the stamp be seen so that in a minute she can take out. So the teacher was very, very impressed and gave her a big, big hug. And they all clapped for her, and she was in the 7th heaven at that time. She was a very, very loving person. She सबके साथ निभा के रहती थी. She had too many friends, too many relatives who used to come and stay with our house and make us work. All the children would be working hard to look after them. We would even give our beds to the cousins. Inside, we'd all be fighting. Why she wants to call all her cousins and her devas, and everybody would come to stay with us. But still, we would do whatever she would want because she loved us a lot. And I think every mother, every child is the God of gift for us to have mothers. So that's all. I don't have much to say. Thank you. Thank you very much. Give her a big round of applause, Veena ji. This is a gift. जिसकी मम्मी होती है ना, जिसको मम्मी मामी पापा होते हैं उनको वैल्यू शायद ना हो, लेकिन जिसको हमारे पास मम्मी पापा नहीं है तो हम उनको बहुत याद करते हैं. जो कहते हैं ना कि जो नहीं है उसको ही हम लोग ज्यादा याद करते हैं. Anyway, without taking any time, I will invite now. Who wants to speak? सुची जी आप बोलेंगे? आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको. हाँ बोलिए. You're not unmuting. Suchi, you have to unmute. आपको अनम्यूट करना है. आपकी आवाज नहीं आ रही है. आपको आवाज नहीं आ रही है आपकी. Meanwhile, मैं किसी और को बोलूं? मैं बोलूं? हाँ कोई भी बोलो. बोलो. हाँ बोलो. मैं बोलूं? हाँ बोलो. मीना जी बोलिए. उनको आवाज, उनको अनम्यूट नहीं हो रहा उनका. आप बोलिए, शुरू कीजिए मीना जी. प्लीज वेलकम. मेरी आवाज हाँ आ रही है. आपकी आवाज आ रही है. मेरी आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही है. की आवाज तो सबसे जोर से आती है. हाँ वही तो बोल रही हूँ मैं. बोल तो रही, पता नहीं. अच्छा आप बोलिए. सुची जी बोलिए. अभी आ रही है आपकी आवाज. माँ शब्द इतना मीठा और इतना स्वाभिमान के साथ इतना अच्छा है कि हम सब मिलके भी उसका बयान नहीं कर सकते. माँ की गोद अमृत के तरह है. माँ हमेशा अपने बच्चों को हर सुख दुख से बचा के रखती है. हम इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ. हम 10 भाई बहन थे. आज मैं खुद माँ बनी हूँ. माँ की वो भावनाएं जो माँ ने हम लोगों के साथ बांटा और दिया, वो मुझे समझ में आया. जब भी मैं पढ़ती थी तो माँ से कुछ मांगती थी. माँ ये क्या है? थोड़ी सी तो चीज है, थोड़े से पैसे मांग रही हूँ, आप तो देती नहीं हो. तो माँ बोलती थी जब तुम खुद माँ बनोगी और घर संसार चलाओगी तभी तुम्हें मालूम चलेगा. अभी पता नहीं चलेगा कि परिवार कैसे चलाते हैं और क्या करते हैं. एनीवे, हम सब भाई बहनों का अच्छे से एजुकेशन हुआ. माँ ने सभी को प्यार भरा हर चीज दिया. फिर मेरी शादी हुई.
शादी होकर के मैं ससुराल में आई। दूसरी माँ ने मुझे अपनाया। सासू माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी लेकिन बहुत अच्छी थी और अनुशासन प्रिय भी बहुत थी। उनसे भी मुझे बहुत चीज सीखने को मिला। और अपने बच्चों में वही संस्कार मैं भी देना चाहिए जो मुझे अपने माँ से और अपनी मदर इन लॉ से मिला। और बच्चों ने सभी ने वो अपनाया भी और किया भी। जैसा कि बताई, बहू को कभी भी बहू नहीं समझी मैं। हम सब साथ मिलके रहते हैं। बहू को हमेशा, शीतल नाम है इसका, मैं हमेशा बेटी की तरह ही रखी। जैसे हमारी 2 बेटियां हैं, शीतल भी हमारी वैसे ही और है, तो हमारी 3 बेटियां हैं। और मैं दोनों का, हम लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। इन्हीं सब उलझनों में मैं हमेशा उलझी रही और माँ के तरफ से हर चीज अलग धीरे धीरे छूटता गया। तो हमारी मदर इन लॉ बीमार पड़ी, फिर फादर इन लॉ भी बीमार पड़े। मदर इन लॉ को भी बेड रिडन हो गई, फादर इन लॉ भी हमारे बेड रिडन हो गए। हमारी सिस्टर इन लॉ हैं जो मेंटल रिटार्डेड हैं, वो अभी भी हैं। उन सब की देख रेख करते करते मुझे ऐसा लगा उन दिनों कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ ना कर पाई और माँ हमसे बिछड़ गई। तो जब भी माँ की मृत्यु हुई तो मैं काफी दूर थी माँ से। मैं उस समय बड़ौदा में थी। तो सपने में आई माँ, बोली तुम तो मुझसे मिलने नहीं आती हो, मैं मिलने आई हूँ और तुम सो रही हो, उठ के बैठो। 4 साल से मैं माँ से मिली नहीं थी, लेकिन तब तक माँ हमारी गुजर चुकी थी। सुबह हुई, मैंने इनसे कहा, सिन्हा जी से, कि मैं ऐसा ऐसा स्वप्न देखी हूँ। तो ये बोले कि तुम्हारी माँ की उम्र बढ़ गई। लेकिन दूसरे दिन फिर खबर आया तो इन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। रात को 11 बजे इन्होंने फोन पे बूथ वाले को बोल के आया कि ऐसे ऐसे है, आप बंद मत करना, मैं अपनी मिसेस को लेके आ रहा हूँ। रात को 11 बजे मैं जाकर के बात की। माँ तो मिली नहीं, लेकिन हमारी बड़ी बहन थी जो माँ का ही अदा की हर चीज, उससे मेरी बातें हुई। मैं बहुत रोई। फिर घर आई, हमारे फादर इन लॉ जो बेड रिडन थे वो बोले, वो रोने लगे। मैं बोली आप क्यों रो रहे हैं? नहीं, तुम्हारी माँ का डेथ हुआ है और तुम तो अभी चली जाओगी तो मुझे कौन देखेगा। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, आप रोइए नहीं, माँ तो मेरी चली गई, अब वैसे भी मुलाकात तो होगी नहीं, तो आप रोइए नहीं और आप चाय नाश्ता कीजिए। फिर उन्होंने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई और मेरे हाथ से चाय और बिस्किट खाए। तो अंतिम में भी मेरा कहना यही है कि माँ ने तो सब कुछ दिया मुझे, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैं माँ को वो नहीं दे पाई जो माँ को मिलना चाहिए था। ये मेरी जिंदगी में कसमकस रह गई है, जो कभी ना कभी हर समय मुझे अंदर ही अंदर कचोटता है। बाकी सभी अपनी सहेलियों को प्यार भरा नमस्कार। बहुत रुचि, अच्छा। थैंक यू वेरी मच। और आपने अपनी मन की बात कही, लेकिन ऐसे आप मत सोचिए। कोशिश कीजिए कि ये हमारे हाथ में नहीं होता है जो आपकी फीलिंग्स आ रहे हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर शेयरिंग, हमारे साथ आपने शेयर किया। कौन है अच्छा। अभी रेडी? मीना जी, हाँ मीना जी आप बोलिए। मीना जी आपको प्लीज वेलकम। मीना जी, आपका स्वागत है। या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू। देखिए, माँ के बारे में तो सबने बहुत कुछ कुछ बोला। मुझे भी बोलने के लिए माँ के बारे में तो काफी कुछ है। छोटी छोटी यादें बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन
ये तो इतना अथाह सागर है ना, इसकी गहराई में तो जितना उतरते जाओ उतना ही ऐसा लगता है अभी तो कुछ नहीं, अभी तो और है, ऐसा लगता है। तो माँ के बारे में ऐसे कुछ छोटे से नहीं कहा जा सकता। एक इंसिडेंस मैं बताती हूँ। मेरी माँ जो थी बहुत छोटे हाइट की थी, ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन उनके विचार बहुत बहुत ऊंचे विचार थे, विचार बहुत ऊंचे थे उनके। उन्होंने क्या करा, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको लेकिन सिलाई कढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था। तो उन्होंने टेलरिंग का कोर्स किया था। तो सिलाई कढ़ाई में होशियार थी, टेलरिंग का कोर्स किया। अब टेलरिंग का कोर्स जो 2 साल का होता था उस समय, टेलरिंग का कोर्स करने के बाद जो फाइनल एग्जाम होता था, उन्होंने फाइनल एग्जाम दिया। फाइनल एग्जाम देने के बाद प्रैक्टिकल में ब्लाउज उन लोगों को सिलने के लिए आया था, जो स्टिचिंग का प्रैक्टिकल। तो उन्होंने ब्लाउज ब्लाउज सिला, सब कुछ जब हो गया, उसके बाद जब एग्जामिनर चेक कर देता है, उसके बाद वो कपड़े उन लोगों को वापस कर दिए जाते हैं। तो वो कपड़े उनको वापस कर दिए गए। तो जब वो घर लेके आई ब्लाउज को, तो उनका ब्लाउज देख के हम लोग बहुत हंसने लगे कि हम लोग माता जी बोलते थे, माता ये आपने क्या बनाया, ये आपने क्या बनाया, आप तो बहुत अच्छी सिलाई करते हो, इतना अच्छा ब्लाउज बनाते हो, ये आपने क्या बनाया। तो हुआ क्या था कि उनका जो ब्लाउज था, ब्लाउज का आगे के साइड का कपड़ा एक था जो ये लेके गई थी, और पीछे के साइड का कपड़ा दूसरा था। तो हमने कहा ये क्या करा, ये क्या करा, हम लोग सबने बड़ी मजाक उनकी उड़ाई। तब उन्होंने जो बात बताई वो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते हम लोग। उन्होंने क्या बताया कि जब हम एग्जाम दे रहे थे, तो मैं तो अपना कपड़ा फोल्ड करके अपने साइज का मैं नाप ले ही रही थी, कपड़े को नाप रही थी इंची टेप से। तब तक मेरे साथ में एक लड़की, जो सिलाई उनकी साथ में जो लड़की थी, उनके साथ ही सिलाई सीखती थी, बड़ी गरीब घर की लड़की थी, 22-23 साल की लड़की। तो बड़ी मुश्किल से उसके घर वाले पैसा वैसा जमा करके उसको सिलाई सिखा रहे थे कि आगे भविष्य में कुछ वो कर ले। तो वो उस लड़की, वो थोड़ा जैसे लड़कियों में होता है, थोड़ा एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी करने का होता है, हैबिट होती है। उस लड़की ने जल्दी जल्दी नाप वाप करके उसने कपड़ा काट दिया। अब कपड़ा काट दिया, गला वाला सब काट दिया, और जब कपड़ा वो खोल के देखा, तो उसने क्या करा था कि उसने ब्लाउज का गला दोनों साइड में काट दिया। अगर जिसको थोड़ी सिलाई भी आती हो, उसको पता चलेगा कि जो भी कोई कपड़ा हम लोग शर्ट का भी या ब्लाउज जो भी है, उसमें पीछे का गला कम कटता है और आगे का गला गहरा कटता है। उसने क्या करा था, जल्दबाजी में दोनों ही साइड के गहरे गले काट। अब आजकल का जमाना तो था नहीं कि भी बैकलेस हो या डीप गला पहना जाता है, ऐसे था नहीं। वो तो वही था पुराना जमाना, पीछे कम गला कटा हुआ। अब वो देखा जब उसने खोल के कि दोनों तरफ का गला कटा हुआ है, तो वो लगी रोने। जो वो उसको रोना हो गया कि फाइनल एग्जाम में रो रही है वो लड़की। मेरी मदर पास में बैठी थी, उसने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रही हो, हल्के से पूछा। एग्जामिनर सामने बैठी थी, तो उसने दिखाया ऐसे करके कि मैंने दोनों तरफ गला काट दिया। अब मेरी मदर को पता नहीं क्या वो हुआ, उन्होंने क्या करा, अपने ब्लाउज का एक हिस्सा उसको दे दिया, क्योंकि सबके कपड़े तो वाइट थे, 1 मीटर सबका वाइट कपड़ा मंगवाया था, तो कपड़े तो वाइट थे। तो उन्होंने एक जो है कपड़ा उसको दे दिया कि ले तू अपना इसका और अपना एक कपड़ा पीस मुझे दे दे। इस तरह से इन्होंने भी अपना ब्लाउज बना लिया, उन्होंने भी ब्लाउज बना लिया। लेकिन फर्क ये रहा कि दोनों के कपड़े में फर्क था। मेरी मदर का जो कपड़ा था वो प्लेन कपड़ा था, और वो लड़की का कपड़ा जो था उसमें था तो वो भी वाइट, लेकिन हल्की हल्की लाइनिंग्स थी, कपड़े में डिफरेंस था। अब देख के मेरी मदर को लगा तो ये बात, हालांकि वो मना कर सकती थी कि नहीं मेरा भी ब्लाउज बिगड़ जाएगा, मैं नहीं दूंगी, नहीं देती तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन उनके दिमाग में ये बात आई कि अरे मैं तो अपने शौक से सिलाई सीख रही हूँ, कुछ इतना वो नहीं है, ये लड़की है, गरीब घर की है, आगे इसको भविष्य है, इस पे निर्भर करता है, पता नहीं बेचारी कैसे उससे मुश्किल से आ रही है सिलाई सीखने। तो इन्होंने अपना कपड़ा उसको दे दिया, बोली चलो मुझे बहुत अच्छी डिवीजन ना भी मिले कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़की कम से कम फेल तो नहीं होगी, ये ऐसे सोच के उन्होंने आधा कपड़ा उसको दे दिया था। अब ऐसे करके जब उन्होंने सिलाई करके जब हम लोगों को सारी बात बताई,
तो हम लोग एकदम चुप हो गए, बिल्कुल कहने लगे, हम लोग कहने के कुछ रह ही नहीं गया था। अब तो मदर हमारी कहने लगी, बेटा देखो कभी जीवन में ऐसा वक्त आता है, मुझे तुम लोग, मैं, हम 2 बहनें हैं, बोले मुझे उस समय तुम लोग सामने दिखाई पड़े कि कभी जीवन में मेरी बेटियों को भी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि परेशान हो रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई मेरी बेटियों की भी मदद करेगा तो मेरे दिल से कितनी दुआ निकलेगी। तो अगर मैंने उसकी मदद कर दी तो उसके घर वालों ने कितनी दुआ दी होगी तुम लोगों के लिए कि मतलब बच्चों के लिए मुझको कितनी दुआ दी होगी कि हाँ भी अच्छा करा मेरी बच्ची के लिए। तो ये सब था कि मेरी मदर के मन में दया बहुत थी, दया ममता बहुत। तो मैं यही मतलब एक छोटी सा यही बात बताना चाह रही थी कि बस बहुत ज्यादा उनके मन में दया थी। इसके साथ ही मैं एक छोटा सा गाना भी गाना चाहती हूँ अपनी मदद के लिए, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं गाऊंगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई सूरत क्या होगी। ऐ माँ सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। धन्यवाद। वेरी नाइस मीना जी, बहुत मजा आया आपकी कहानी से और आपके गीत से भी थोड़ी सी रौनक आ गई हमारे प्रोग्राम में। तो अभी हु वांट्स टू शेयर? मेरे को एक वर्ड याद आ रहे हैं, मेरे पास लिखे हुए हैं। माँ संवेदना है, माँ भावना है, माँ एहसास है, माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। एक जी की पोयम है और उनमें उसमें इतनी सारी बातें हैं ना कि मैं एक साथ में नहीं बोल पाती, मुझे लगता है एक एक लाइन बोलूंगी। शशि जी, यू आर ऑन स्क्रीन राइट नाउ, यू वांट टू शेयर समथिंग? यस, बोलिए। माँ के बारे में जो यादें रहती हैं वो तो अथाह सागर के इतने प्यारे मोती, इतने सारे मोती हैं कि निकालते खत्म नहीं होंगे कभी भी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। माँ जैसे कहते हैं कि त्याग की मूरत, वो दिन मैं कभी नहीं भूलती कि जब मैं 4th क्लास में थी, 4th और 3rd में होंगी, तो मेरे ऊपर गर्म पानी पड़ गया था उबलता हुआ और मेरा फ्रंट पोर्शन काफी सारा बर्न हो गया था। तो 1 महीने से ज्यादा मेरी माँ मुझे ऐसे बाजू में लेके पूरी रात घूमती थी और वो मुझे अभी तक एकदम याद ताजा रहती है कि कितना सेक्रीफाइस किया है मेरी माँ ने मेरे लिए। सबके लिए ही करती है माँ सेक्रीफाइस। तो त्याग की मूरत तो माँ होती ही है, प्यार की मूरत तो होती ही है। उनके सम्मान में मैं एक छोटा सा गीत पेश करना चाहती हूँ। जरूर। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे
जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ कुछ कह रही है क्या? चाहिए। तेरी ममता के साए में फूलूं फलूं, थाम कर तेरी उंगली बढ़ती चलूं। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में असमत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत मतलब रोना आ जाता है आपके गाने सुन के। आपने बहुत भावना के साथ गाना गाया। सुंदरी जी, वुड यू लाइक टू शेयर? सुंदरी जी, माँ चाहे इस लाइफ में हो या ना हो, नहीं? माँ के जिंदा होते हुए भी और माँ के बाद भी या उनकी दुआ हमेशा हमें चाहिए। एब्सोल्युटली। बिल्कुल चाहिए। प्रतिभा जी, हाँ मैं बोलूं? प्रतिभा, हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ, माँ का सबसे पहले मैं आप सब लोगों को मदर्स डे का शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि हम सभी माँ तो है ही। माँ शब्द दिमाग में आने के बाद एकदम उसकी तस्वीर ही सामने आ जाती है, खासकर जब हम लोग दुख में होते हैं। मेरी माँ का शादी एक गांव में ही हुई थी और हमारा संयुक्त परिवार था। वहां पर मतलब सब जैसे घरों में होते हैं, दादा दादी बुआएं सब थे, और मैं अपनी मम्मी को 7 महीने की पैदा हुई थी। तो बड़ी मुश्किल से मुझे पालना भी पड़ना था, क्योंकि गांव में इतना फैसिलिटीज नहीं होती है। तो उस टाइम मेरी दादी को बहुत रोना आया कि इसको लड़की हुई है करके। तो बाद में वो बहुत खुश थी, उसने मेरे को अच्छी तरह से अपने साथ घुमाया भी दादी ने, वो बात अलग है। अब मम्मी को उसने एक एडवाइस दिया कि मेरी बुआ का लड़का 2-3 महीने का होगा, तो वो बोल रही थी हम एक्सचेंज कर लेते हैं, तू अपनी लड़की उसको दे दे और उसका लड़का हम ले आते। तो मेरी मम्मी ने उस टाइम बड़ी हिम्मत करके बोला कि नहीं, मैं अपनी लड़की किसी को भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे को चाहे जितनी मर्जी लड़कियां हो जाए लेकिन मैं नहीं दूंगी। फिर बाद में मेरे पिताजी तो खैर बैंक में काम करते थे, लेकिन उस टाइम बैंक प्राइवेट थे, तो कुछ ऐसी दुविधा में फंस गए थे कि उनकी नौकरी मतलब नहीं रही। तो ऐसे दिन भी मेरी मम्मी ने मतलब गुजारे। फिर नौकरीवश हम लोग दिल्ली आए, तो वहाँ जब दिल्ली आए तो मैं 8 साल की थी, वहां पर ही हम बहुत साल तक थे। तो दिल्ली में भी हमारा एक समाज था, वहां पर गणेश उत्सव या बहुत तरह तरह के प्रोग्राम होते रहते थे। उसमें मेरी मम्मी एकदम सक्रिय थी, भजन गाना, नाटकों में काम करना, तरह तरह के पदार्थों को सीखना, इसमें सब में उसने बहुत काम करा। और घर पर भी हमारी पढ़ाई वो ही लेती थी। इंग्लिश ग्रामर खासकर उसने मुझे सिखाई। मराठी भजन उस टाइम दिल्ली में बहुत कम लोगों को आते थे, वो भी मुझे उसने सिखाए। तो इस तरह से रिटायरमेंट के बाद पिताजी हमारे नासिक आए। नासिक आने के बाद
वहां पर मंदिर में ये जो मेड सारी होती है वो दोपहर के टाइम आराम करती थी और शाम को फिर सबका काम करके अपने अपने घरों में जाती थी। तो मैं मम्मी ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सबको भजन सिखाए, क्योंकि वो चाहती थी कि भजन सबको आने चाहिए और इन लोगों को कौन सिखाएगा, ये उनकी भावना थी। वो बहुत ही सरल स्वभाव की थी और हमेशा सेवा करने में उसको अच्छा लगता था किसी की भी। तो उनकी मृत्यु अचानक ही हुई थी। वो बेचारी टीवी देखते देखते गुजरी है, कुछ भी उनको नहीं हुआ, एक गिलास पानी का भी किसी से उन्होंने नहीं लिया। तो उनके वो 10 दिनों में वो सारी लेडीज ने आकर हमें बताया कि ये सारे भजन हम गाएंगे क्योंकि इन्होंने हमें सिखाए हैं। तब तक हमें पता नहीं था कि ये उधर जाके भी भजन भी सिखाती थी करके। और मेरी शादी दिल्ली में ही हुई। हम जिस हवेली में रहते थे तो हमारी लव मैरिज थी, हम नीचे रहते थे और ऊपर हमारे ससुराल वाले थे। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बचपन से ही देखा था, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से रखा है, कभी भी बहू के रूप में उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। तो बाद में हमारे बच्चों की भी शादियां हो गई है, हमारे पास भी, मेरे पास 2 बेटे ही है, बेटियां नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी बहुएं आई हुई है वो बेटी से कम नहीं है, बेटी की तरह ही मेरा पूरा ध्यान रखती है वो। और मम्मी का एक और बताऊंगी, उन्होंने मेरे प्रतिभा नाम इसलिए रखा क्योंकि उनकी प्रतिभा मुझ में आ जाए। तो गाने का तो मेरे में आ ही गया है उनका, और मेरे साथ साथ मेरे दोनों बेटे भी बहुत अच्छा गाते हैं और मेरी पोती छोटी किमया वो भी बहुत अच्छा गाती है। तो ये गुण उन्हीं से हमें मिले हैं। तो मैं अंत में 1-2 शब्द कहूंगी कि माँ भगवान की रूप होती है, ये तो सभी के लिए होती ही है, लेकिन हमारी मदर इन लॉ सासू माँ जिनको हम बोलते हैं वो भी कोई कम नहीं होते हैं। उन्होंने मुझे सब गृहस्थी के बारे में बताया, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे से कभी भी काम नहीं कराया। वो कहती थी कि उन्होंने अपनी माँ को नहीं देखा था तो उनकी सौतेली माँ उनसे बहुत काम कराती थी, तो मैं अपने लड़कियों से काम नहीं कराऊंगी, इसलिए मैंने अपने मम्मी के साथ कुछ भी काम नहीं कराया, लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे सारी गृहस्थी के काम सिखाए। तो मैं ऐसे कहूंगी कि अगर मम्मी भगवान का रूप है तो सासू माँ को हम गुरु कह सकते हैं। धन्यवाद। वेरी नाइस, बिग हैंड, ताली बजाओ। बहुत अच्छा बोली। मेरे को ना एक बात याद, बहुत अच्छा बोली, बहुत ही बढ़िया बोली। और मेरे को एक बात याद आ रही है कि कौन सी वो लड़की है जिसने अपनी माँ से ये सेंटेंस नहीं सुना कि जब तुम माँ बनोगी तब तुम समझोगी। सही बात है। जब छोटे होते हैं ना, 16-17 साल के होते हैं, जब अपनी धुन में होते हैं ना, तो हम लोग कुछ अपनी एक टीनेज में होते हैं ना, तो सुनते नहीं मम्मी की बात। और मुझे भी ऐसा याद है कि मैं खाना बनाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैं किचन में नहीं जाती थी। तो मेरी मम्मी बोलती थी तुमको कुछ नहीं सीखना है और पापा भी तुमको बहुत बिगाड़ के रखते हैं, तुमको बस अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट है, जब तुम माँ बनोगी, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुमको मालूम पड़ेगा। और वाकई मालूम पड़ा, मेरे को खाना बनाना नहीं आता था और मेरी मदर इन लॉ से मुझे बहुत सारी वो बातें सुननी पड़ती थी। इट्स रियली ट्रू। बट और मुझे एक बहुत मुख्य सवाल पूछना है आप सबको कि हम में से किसी ने भी अपनी मम्मी को, आपने सबने बताया कि आप माँ का रोल अच्छा निभाए, आपकी माँ ने भी अच्छा, आपकी माँ बहुत अच्छी थी, शी वॉज द बेस्ट मदर, एवरी वन ऑफ अस हैड द बेस्ट मदर। आप आपने एज अ मदर आपने बेस्ट रोल निभाया, आपने एज अ मदर इन लॉ माँ का रोल निभाया। एक सवाल मेरे मन में जो हमेशा मुझे खटकता है कि मैंने ना अपनी मम्मी को कभी ये नहीं पूछा कि वो अंदर से वो क्या बनना चाहती थी। मतलब मुझे ऐसे, अभी मैं 60 साल की हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और मैं अभी कर रही हूँ। मुझे गाना गाना है, मुझे डांस करना है, मुझे आप लोगों से मिलना है, और मैं अंदर की जो मेरी बात है ना, मैं अपनी अभी आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम में से किसी ने भी अपनी माँ को ये सवाल पूछा था क्या, मम्मी आपको क्या करना चाहते थे? वो माँ तो ऐसी चीज है ना कि भाई शादी हुई तो अपने आप को भूल गई, और हम सब भी ऐसे ही हैं। We have all forgotten our inner self। तो मैं इस सवाल के साथ में ये प्रोग्राम का एंड करूंगी। 1 मिनट ये कहते हुए कि हमारे अंदर कौन से सपने हैं, कौन से सपने थे जब हम छोटे होते थे, जब हम माँ नहीं बने थे, एज ए लड़की, आप अगली बार मेरे साथ शेयर करना। पानी पी लो।
हाँ, दीपा थोड़ा जी, हल्का देखो, पानी पी लो, दीपा जी, पानी पी लो। मेरे फोन थोड़ा सा की पानी तो पी लो। बैटरी जा रही है, बैटरी और जा रही है। मैंने ऐसे देखा है कि जब भी हम सब छोटे थे तो माँ जो भी बोलती थी, माँ से बहुत सभी नाराज थे, राइट, गुस्सा होते सही थे, नाराज होते थे, सही लेकिन बात है। अभी अभी जाके माँ की वैल्यू पता चली है। पता चलता है। जबकि खुद माँ बने हैं ना, तो भी मालूम पड़ा कि माँ की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है हर तरफ से। हाँ जी, सिर्फ माँ का ही नहीं, औरत के तो कितने सारे रूप हैं, माँ है, बहन है, मेरे पास सास भी थोड़ा ही बनती टाइम है। है, अभी प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो मेरे को सबको बाय बोलना है, सबको थैंक यू बोलना है। आप सबने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और आपके थॉट शेयर किए। अगली बार अपने सपनों को लेकर आप आइए और हमारे साथ में शेयर कीजिए। अंदर से आप क्या सोचते थे अपने बारे में? अपने अपनी माँ को तो नहीं पूछा, लेकिन हम अपने आप से तो ये सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हमने हमारे अंदर के सपनों को कैसे खत्म करा है। And can we relive our dreams right now? So thank you very much. बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आप आपको भी, सबका। थैंक यू आपको वेरी मच, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत Thank you धन्यवाद। very much. बहुत आनंद आया अलका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बाय बाय, सबको बाय बाय। जुड़े हुए हैं। दूसरे के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। वो वाला गाना याद आ रहा है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, है माँ, ओ माँ, ओ ओ माँ, ओ माँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत